Assalamu alaikum everyone, welcome to today's podcast, and I'm sure you're wondering what I'm wondering, which is where are we? We're not in our usual setup. We're in front of this beautiful grass wall, and the one thing that perhaps is most important for today is what's written behind us. Grow with Imamba. Grow being important. But before we dive into what we're talking about today, I'm sure you're wondering who's with me. So my introduction, you don't really need to know. But Sumbul, please let our audience know, who are you? I'm Sumbul Kakakhel. I'm a life coach, a counselor, and a behavior therapist. मेरी कंपनी का नाम है Self Matters Counseling. I've been working in this field since 2017 and I've worked with hundreds of people. हम आपको सिखाते हैं अपनी ज़िंदगी के मसाइल को कैसे हल करते हैं, अपनी overall wellness को कैसे improve करते हैं, whether it's physical health, whether it's mental health, even financial health, all areas of health हम उसमें cover करते हैं. And how do we do it? Through behavior modifications. We teach you different ways to use the strengths in your life to overcome the weaknesses. Oh, that's so interesting. I've always been fascinated by disciplines like this, and especially in Pakistan, because if we dive right in, mental health, mental wellness, perhaps it's a better way to phrase it, not something that's very much talked about over here. In fact, Absolutely. Every time that I've tried to talk about it, I always get the phrase, क्या करना है सोच के, मतलब वैसे ही दिमाग में है. So too sensitive, you're too sensitive. Absolutely. ऐसी बातों को सोचने का क्या फ़ायदा? सबसे interesting, don't be depressed, don't be anxious. Absolutely. आपको यही सिखाया जाता है कि अपनी feelings को suppress कर दो, कहीं side पे कर दो, brush it under the carpet. लेकिन फिर होता क्या है? वो brush under the carpet eventually becomes a पहाड़ and we have to deal with it eventually. So आपने जो point out किया, it's the most important step in the process जो हम करते हैं, that is to reduce the stigma surrounding mental health. जब तक इसके around stigma होगा, people are not going to speak about it, nobody is going to consider it a problem. मुझे लगता है it's the problem जो सबसे ज़्यादा आजकल exist करता है and it's the least talked about. हम ये admit करने को ही तैयार नहीं कि कोई मसला है. So this is something that we really need to work at, to talk about, to reduce the stigma. ऐसा क्यों होता है कि इसके अराउंड स्टिग्मा है? जब हमारे एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है ये है कि बचपन से हमारे कुछ बिलीव्स बनते हैं एज वी ग्रो अप. उनको हम पैराडाइम्स भी कह सकते हैं, बिलीव्स भी कह सकते हैं. हमारे एक तरह से आप कह लें फिल्टर्स बन जाते हैं, मेंटल फिल्टर्स. अगर वो फिल्टर ये बन जाए कि प्रॉब्लम का होना बुरी बात है, तो फिर हमारा ये स्टिग्मा डेवलप हो जाता है. अच्छा, मुझे बताएं, किसी ऐसे शख्स को आप जानती हैं जिनका कोई प्रॉब्लम ना हो? No. किसी ऐसे शख्स को जानती है जो कभी बीमार ना हुआ? It's impossible. When you live in the world, problems are a natural part of the process. हम बीमार होते हैं, हमारे घर वालों के साथ हमारे issues आते हैं, relationships के अंदर issues आते हैं, और ये सारे मसले हमारे लिए we have to cope with them, हमारे लिए problems बनाते हैं. अगर हम कहेंगे कि ये मसले नहीं exist करते, फिर हम क्या करते हैं कि हम सफ़र अंदर से करते हैं, we're alone and we show a brave persona. और इस persona के पीछे क्या होता है? What is behind the brave persona? Worrying, not having proper sleep, having digestive problems, hurrying all the time, worrying about work-related problems, worrying about losing your job, rejection. There's so many issues that are running through our head behind the brave persona. Imagine करें एक workplace में everyone is suffering, but they're suffering alone because nobody's talking about it. So relatable. I think one of the manifestations that appear for me is I stress eat. And I stress eat a lot. Exactly. Some people stress eat, some people sleep a lot, some people withdraw, दूसरों से बात करने को दिल नहीं चाहता, social events पे जाने को दिल नहीं चाहता. ये सारे वो telltale signs हैं. ठीक है? If you're worrying more than normal, if you are overthinking, if you go to sleep every day thinking about the next day and how you're going to cope, it means that you need help. I see. You mentioned the workplace, and I actually came across a very interesting statistic, which I don't know is true. So I read that the work-related stress causes a loss of 300 billion annually. Yes, that is a correct. This is true? Yes. Oh my goodness. 300 billion annually आपकी कॉस्ट है सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, just stress alone.
ठीक है। यहाँ तक कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है कि जो हेल्थ केयर है उस सिस्टम को जब स्टडी किया गया तो उन्होंने कहा कि जितने भी ट्रीटेबल इलनेसेस हैं, जितनी बीमारियाँ ट्रीट होती हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, 75% ऑफ दोज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू स्ट्रेस अलोन। बाकी सारे फैक्टर्स आप जो है जेनेटिक्स एंड स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस इन योर लाइफ, उनको अगर हम साइड पे रख दें, सिर्फ स्ट्रेस के साथ 75% कनेक्टेड है। आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी एक चीज़ है जिसको हम बैटल कर रहे हैं, बट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि हमें ये मसला है। Wow. However, I think I should mention another thing that I've personally faced. For example, if I ever tell anyone that I'm stressed, they're just like, what's that something to worry about? हर किसी को होता है, हर कोई stress होता है. Exactly. It's okay. Brush it under the carpet, like I told you. बिल्कुल. देखिए, हम जब एक दूसरे से पूछते हैं ना, how are you? हम क्या जवाब होता है usually? ठीक. Fine, thank you, alhamdulillah. These are the answers. What if you walk into your workplace and you say, how are you? Or agla banda kahe, I'm really stressed, really having a difficult day today. Shouldn't that be normal? Isn't that a normal way to respond? Some days we feel really good, some days we don't feel so good. And we should be able to talk about it at the workplace. कुछ theorists ये कहते हैं कि ये जो मसला है स्ट्रेस का, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का, जो एक, मैं इसको असल पैंडेमिक समझती हूँ, वो पैंडेमिक तो फिर भी गुजर गया, it was like a wave, but this is something that's here to stay unless we work on it and make big lifestyle changes. So ये जो सारा आ रहा है मसला, इसमें जो थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि अगर एक चीज़ को हम रख लें, एक चीज़, तो वो कौन सी एक चीज़ होगी जिसकी वजह से ये मसला सॉल्व किया जा सकता है इन अ बिग वे, एंड दैट इज़ टू टॉक अबाउट इट. जस्ट टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ विद अदर पीपल. Talk about how you're feeling that day without emotional masking. You should be able to say how you're feeling without having to feel that you have to put on a mask or a persona. आप इस बात से सोचें कि 45% of the people have had mental health issues at some stage in their life. ठीक है. 1 in 6 people have a diagnosable mental health condition. Diagnosable, जिसको हम नाम दे सकते हैं, right? 1 in 4 people जो हम अब इमेजिन करें, हम 4 लोगों से मिलते हैं, उसमें एक बंदा जो है वो किसी न किसी ट्रीटमेंट के अंदर होता है. दीज आर स्टेटिस्टिक्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक US एंड UK. तो आप सोचें हमारे यहाँ ये नंबर कितना हाई होगा और कितना बड़ा होगा. अच्छा, ये स्टेटिस्टिक्स चल रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के, लेकिन जब एक सर्वे किया गया और लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपके वर्क प्लेस में किसी के इस किस्म के मसले हैं या नहीं, what do you think was the answer? होंगे, हर किसी को. They said 50% of the people have no problems. लोगों की ये परसेप्शन थी कि 50% जो है लोग ये कह रहे थे कि किसी का कोई मसला नहीं है. तो आप सोचें कि इस हद तक ये मसला हिडन है, and it's hiding in plain sight. It's right in front of us. We are suffering from it every day, but we are completely denying it. So the wellness sessions that we have started at Imamba, उनका मेन मकसद यही है कि इस बारे में बात की जाए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, इस तरीके से किया जाए कि ये टॉपिक जो है बिकम्स डिस्कसेबल. That's really great actually. Yes, absolutely. Mamba के अंदर हमने wellness sessions इसी नीयत से शुरू किए थे कि I think it's high time that we stop the stigma around mental wellness. However, I think this has brought up another issue that, for example, if you know that there is a good session that is coming up, say it's something about, it's about how to deal with stress, it's about how to regulate your emotions, people are somewhat hesitant to attend sessions like this. देखिए, कुछ तो इसका एस्पेक्ट स्टिग्मा से रिलेट करता है. दे फील लाइक दे डोंट नीड इट, दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम. हम प्रॉब्लम्स को डिनाई करते हैं. एक तो इसका कुछ पार्ट ये है. सेकेंड पार्ट जो इसका ये है वो है डेडलाइन माइंडसेट. हमारी ज़िंदगी की जो टू डू लिस्ट होती है उसमें हम टॉप प्रायोरिटी उस चीज़ को रखते हैं जो कि डेडलाइन होती है. ये चीज़ें भी हम सिखाना चाह रहे हैं इन द वेलनेस सेशंस कि आप प्रायोरिटी जोन में आएँ अपनी ज़िंदगी में, क्राइसिस जोन से निकल आएँ. क्राइसिस जोन क्या होता है? वो जोन जिसमें हम उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो कि बर्निंग बिल्कुल बर्निंग क्राइसिस बन रहा हो, हम उसी को करते हैं. प्रायोरिटी जोन का मतलब ये है कि हम उन कामों को भी तवज्जो दें जो कि उस वक्त क्राइसिस नहीं है, बट देयर इज समथिंग दैट नीड टू बी डन टू प्रिवेंट अ क्राइसिस.
That's very interesting. I think another thing that a lot of people here or perhaps can relate to is कि अगर आप जाना भी चाहें तो आपके लिए लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या फिर they say कि हाँ मतलब they have issues या they want to go deal with it, and so that sort of becomes a problem in and of itself. Absolutely. Organizations में लोगों से जब पूछा गया और इसकी पीछे वजह ये थी कि 30% ऑफ एब्सेंटीइज्म एट वर्क प्लेस इज ऑल्सो स्ट्रेस रिलेटेड। तो जब पूछा गया उनसे कि आपने क्यों किसी से बात नहीं की, यानी एक फिनोमेना है जिसको हम बर्नआउट कहते हैं, जिसमें आपकी हालत ऐसी हो जाती है स्ट्रेस की वजह से कि जिसमें आप फिर फंक्शन नहीं कर पाते। सो बर्नआउट से पहले स्ट्रेस इज़ वेरी मच प्रिवेंटेबल। जब आप बर्नआउट में चले जाते हैं तो कुछ आपको ऐसे भी इश्यूज आ जाते हैं जो कि फिर बहुत मुश्किल से यू हैव टू कम बैक, लाइक यू टेक अ यू टर्न ज़रा मुश्किल से। तो जब इस पर वो की रिसर्च की गई, डेटा लिया गया कि क्यों बर्नआउट से पहले लोग प्रिवेंटिव उसकी तरफ नहीं जाते, तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट ये निकला कि पीपल आर अफ्रेड टू टॉक टू देयर मैनेजर्स अबाउट स्ट्रेस बिकॉज द मैनेजर्स आर नॉट वेल वर्स्ड, और उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन उन्हें स्टिग्मेटाइज करेगी। उनका मैनेजर उन्हें ऐसे नज़र से देखेगा कि इसको तो इसको कोई मसला है या देर टू सेंसिटिव। सो व्हाट पीपल डू इज दैट दे कीप ऑन suppressing the stress and pretending they're okay until they reach burnout, and then organizations को बहुत नुकसान होता है because of that. So अगर आप पहले से सीख लें कि उसके signs and symptoms क्या हैं स्ट्रेस के और उसको पहले से मैनेज कर लें तो फिर क्या होगा, you can prevent burnout, and for that the organization leaders and managers, they need to know कि क्या उनके सिम्टम्स हैं, जब कोई आके उनसे बात करे तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या उनको सपोर्ट देनी है और उस सपोर्ट को किस तरीके से फिर ट्रीटमेंट या प्लान या ट्रेनिंग सेशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। I see. So all of these are sort of, things that people face when they want to attend sessions, but, they're unable to. Perhaps अब मुझे पूछना चाहिए कि why should people attend sessions? Why should they make it a priority? देखिए, ज़िंदगी में हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि बर्निंग, जैसे मैंने आपको ड्यूटीज़ हैं, हमें करनी ही करनी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म विजन से अलाइंड होती हैं, जैसे एक्सरसाइज, जैसे अपनी सेहत पे काम करना, अपनी डाइट को कंट्रोल रखना, अपनी नींद के ऊपर काम करना। ये वो मसले हैं जिनको हम साइड पे करते हैं कि कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज, ठीक है। अब अगर हम ई-मंबा को ले लें, मोस्ट एम्प्लॉयज़ आर अंडर 35, ठीक है, 22 to 35 मुझे एज रेंज बताई गई थी। तो इस एज में ना आपको अचानक फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, आपकी नींद अच्छी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप डेडलाइंस को चेस करें तो आपको फ़ौरन फील नहीं होगा उसका इफेक्ट, लेकिन 5 years लेटर, 10 years लेटर आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी क्यों स्ट्रेस आउट होती है? हमारे ब्रेन के अंदर देयर इज अ सिस्टम जिसको हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं, बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है हमारी बॉडी में बिकॉज वी वर मेंट टू फाइट लाइक big animals, or somebody is holding us at gunpoint or something like that. तो जान बचाने के लिए फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम जो है वो हमारे ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर रखा गया था। अब हम उस ज़माने में तो नहीं है कि जंगल है और वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम ह्यूज प्रेडेटर्स एंड स्टफ। लेकिन आज की दुनिया के प्रेडेटर्स क्या हैं? वर्किंग टू मच, ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लूजिंग योर जॉब, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, नॉट बीइंग कॉम्पिटेंट इनफ। ये सारी चीज़ें हमारे उसी सिस्टम, उसी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती हैं। सो जब वो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है तो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी के ऊपर उसका एक एडवर्स इफेक्ट आता है। एंड दैट इज़ वाई, सिंस इट्स हैपनिंग टू all of us need to learn how to manage it, and that we are teaching in the wellness sessions. Oh, this is a very relatable conversation for me. I think that the next thing I would ask is, I know that there are, for example, entire routines for your physical health, or you can find entire nutrition plans for your, to take care of yourself and have a good diet. Is mental health something that you can learn? Absolutely, absolutely. These are just skills, जैसे हम बाकी सारी skills सीखते हैं। Skills क्या होती हैं? महारतें होती हैं, जैसे ड्राइविंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, कुकिंग इज़ अ स्किल। इसी तरह स्टडी स्किल्स होती हैं। एग्ज़ाम के दिनों में हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे पढ़ लो, ऐसे एक्रोनिम्स बना लो। इसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी हमारे कुछ स्किल्स हैं, ब्रेन बेस्ड स्किल्स, जिनको सीख के हम उसमें से निकल सकते हैं। कुछ होते हैं स्किल्स
और कुछ होते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर पाना, ठीक है। नेगेटिव इमोशंस जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉमा, ठीक है। अब आप अगर पूछें मुझसे, वैसे तो हमें पता है ट्रॉमा क्या है, बट अगर साइंटिफिकली पूछे कि ट्रॉमा क्या है, मोस्ट वुड नॉट नो, ठीक है। ट्रॉमा हमें लगता है कोई बड़ा काम होगा, खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है तो वी लूज समवन वी लव, और देयर इज लाइक अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस और समथिंग, तो उसको ट्रॉमा कहते हैं। हकीकत में ट्रॉमा जो है, इट कुड जस्ट बी समथिंग दैट यू फाइंड डिफिकल्ट टू कोप विद। आपके स्किल लेवल से वो बहुत बड़ी चीज़ थी, दैट इज अ ट्रॉमा, राइट। सो इट कुड आइदर बी द प्रेजेंस ऑफ समथिंग दैट यू फाइंड हार्ड टू कोप। बचपन में ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ों से हम कोप नहीं कर सकते, सो इवन अ स्मॉल थिंग, जैसे आपको जवाब नहीं आता था एंड द टीचर पुट यू इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड टोल्ड यू टू स्पीक, इट कुड बी ट्रॉमेटिक फॉर यू. So trauma could be a stressful event that happened that you couldn't cope with, or it could be the absence of a nurturing environment. अगर आप हमारे लाइफस्टाइल को देखें, हमारे स्कूल्स को देखें, पेरेंट्स घरों की सिचुएशन को देखें, तो ट्रॉमा इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आर डे टू डे लाइफ, ठीक है। सो जितना हम इसको अपनी स्टोर ट्रॉमा को रिलीज़ करेंगे, पहचानेंगे उसके इफ़ेक्ट्स को, और जितना ब्रेन बेस्ड स्किल्स सीखेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ, उतना ही ओवरऑल हमारी हेल्थ इम्प्रूव करेगी। बिकॉज ये जो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है ना, ये आपस में ऑल आर कनेक्टेड। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल या प्रोफेशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सोशल, दीज 5 एरियाज ऑफ हेल्थ आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। जब एक इम्प्रूव करेगी तो उसके साथ दूसरे भी टाइड अप हैं, तो इन सब एरियाज पे काम करने की ज़रूरत है। All right, that's very great to hear. I think we are definitely taking steps in the right direction now that we've started talking about mental wellness, and we're very hopeful to have this journey continue in the future. I am quite sure that our time is up, so let's conclude over here. Thank you so much for your time, Sumbul. बहुत शुक्रिया रूज, thank you so much for giving me this opportunity. What we'd be doing is we will be linking Sumbul's socials in the description section below, and I'm sure if you heard in the beginning that Sumbul has an organization of her own, you can reach out to her as well if there's anything more that you'd want to talk about. And yes, with that, thank you so much for tuning in, and we'll see you next time. Hafiz.